Hi, so welcome to DCA. So this session is exclusive for those who are aspiring for CDS and CAPF 2020. I'm talking about CDS 2 and the CAPF which is scheduled in December. Right, so many of the queries we were receiving, but due to the lack of, you can say that, the team members due to this pandemic, right, so we're working alone from home, and hence we were stuck with the different exams, NDA, then we have the civil service, etc., right, and that's why we gave a skip to the AFCAT. So this announcement is for the booklets, the DCA exclusive booklets for the CDS and CAPF as well. So there are some portions which might be useful, in fact it is useful for CAPF as well. तो उन बुकलेट्स के बारे में जो आप पूछ रहे थे उसके बारे में मैं ब्रीफ डिटेल बताऊंगा, so that you can decide and you can maybe it is helpful for you or not, it's up to your wisdom, right? So first thing, I'm talking this complete booklets available for the CDS and CAPF in two aspects. So पहली video, this is the first session of the video, that is part 1, static books. Static books मतलब जो चीज़ आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे CDS या CAPF, राइट, तो वो जो जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है वो स्टैटिक है, मोर और लेस 95% स्टैटिक, हो सकता है 5% टर्म्स न्यूज में हो, लेकिन कहानी तो वही होती है, राइट. सो आई एम टेकिंग दिस पोर्शन स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, राइट, विच इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस ऑफ CDS एज वेल एज CAPF, राइट. तो मैं पहले स्टैटिक पार्ट के बारे में बताऊंगा. द सेकेंड पोर्शन ऑफ द वीडियो, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी ऑन करंट अफेयर बुकलेट्स and one another booklet which is kind of revision module that I will talk on later. So first one, so which you might have seen on the social media page, the GSQIP booklet, so quality improvement program booklet, right. So it is a collection of, मैं आपको थोड़ी booklets के बारे में डिटेल बता दूं, right. So आपको पता होना चाहिए कि exactly इसमें क्या है and whether it is helpful for you or not. It contains basically questions derived out from the NCERT. Now NCERTs we have taken some questions from 7th as well, 7th, 8th, 9th, 10th, and for history, geography and polity we have taken 11th, 12th as well. Science में हमने 11th, 12th नहीं लिया है, right? It includes some questions of, in science I have included physics, chemistry, biology, all. तो जैसे this is MCQ booklet, MCQ in the sense you have question, you have detailed explanation with the answer. Let's suppose we have question ABCD is the option, right, or consider the following statement which is the following is correct. हमने उसका आंसर दिया, then the detailed explanation why that answer is correct, right, and what is the need of explanation, right. जिनके पास पहले वाली कोई बुकलेट होगी वो देख सकते हैं, उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेनेशन मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने कोई बुक पढ़ रखी है, अभी तक भी आपने तैयारी किया होगा. देखो NCERT इज एक्चुअली वेरी गुड बुक, राइट. आपको रियली में उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं. जो बात है, अगर आप NCERT भी पढ़ते हैं आप बहुत अच्छा है, आप वाकई एक हार्ड वर्किंग एंड वॉइस कैंडिडेट हैं और पढ़ना भी चाहिए. बट इन केस होता है कुछ बच्चों को कि नहीं इतना नहीं पढ़ना, थोड़े से कम में हो जाए, शॉर्टकट में हो जाए, 30 नंबर आ जाए किसी तरह से, यू ट्राई टू मेक अप, यू ट्राई टू बूस्ट योर स्कोर, यू ट्राई टू पावर योर स्कोर. सो दिस कैन बी एडिशनल. आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, किया, सब अच्छी बात है. यू जस्ट नाउ वांट टू चेक योर प्रोग्रेस, यू वांट योर knowledge, or you can say the preparation to be enriched, you want your quality to be improved, right. So वो questions हमने इसमें डाले हैं. So I have mentioned it around 380 plus MCQs explained, but actually 380 plus नहीं है, इससे ज़्यादा ही है, right. इससे ज़्यादा है, जो कुछ points है इसमें हमने NCERT के कुछ important box वाले point भी लिख दिए हैं, images डाल दिए हैं जो आपको एक बार देखना चाहिए. अब देखो आजकल जो ट्रेंड है, अब हम सिविल सर्विस की बात कर ले या NDA में देख, फिजिकल ज्योग्राफी वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सो नोबडी इज श्योर व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड. हम भी श्योर नहीं है, वी कैन ओनली गेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स, सम सरप्राइज एस्पेक्ट, या उस टॉपिक का रिलेवेंस क्या होता है, उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है. अभी तक तो CDS में ट्रेंड फॉलो हुआ है, बट एकाएक अगर UPSC सोचे कि नहीं पूछना तो कोई क्या कर लेगा. द मोस्ट नेग्लेक्टेड पोर्शन जो बच्चों में होता है वो इकोनॉमिक्स होता है, इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को ड्यू वेटेज दिया है. एंड इकोनॉमिक्स के अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस डाले हैं, इंक्लूडिंग जो थोड़े डायनामिक टर्म्स हैं उसको भी स्टैटिक के साथ मर्ज करके एक्सप्लेन किया है, राइट. सो दिस कैन बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन. सो दैट इज ऑल डिटेल ऑफ NCERT क्वेश्चन GSQIP बुक, जिसका अभी आपने यू माइट हैव गॉन थ्रू द सोशल मीडिया न्यूज सर्कुलेटिंग अराउंड यू, राइट. नाउ द सेकेंड पोर्शन, दिस इज DCA एक्सक्लूसिव. ये एक नया एस्पेक्ट है, राइट. इसमें हमने MCQs डाला है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि चाहे हम हिस्ट्री की कितनी भी थ्योरी दे दें,
हमसे 100 गुना 1000 गुना बेहतर किताब मार्केट में पहले से है, दैट इज स्पेक्ट्रम। हम भी तो उसी से पॉइंट्स उठाते हैं, बिपिन चंद्रा अपन भी उसी से उठाते हैं, राइट। एनसीईआरटीज द होल एंड सोल, राइट। तो हमने आपको उसमें से वैल्यू ऐड करने की कोशिश की कि आप इन चीजों को ध्यान दे लीजिए, राइट। दैट इज असिस्टेंस। नाउ द डीसीए विज्ञान बुक, द सेकेंड बुकलेट इज डीसीए विज्ञान, दैट इज एज द नेम सजेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ साइंस पोर्शन। नाउ यू नो दैट कि साइंस पोर्शन हैज अ ड्यू वेटेज अराउंड, यू कैन से दैट 25-26 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं इंट्रेंट, कभी कभार 22 भी आए, कभी 27 भी आए, राइट। सो अल्टीमेटली आप मान के चलिए कि ले दे करके कम से कम 17 to 18 मार्क्स, राइट। अब 0.8 का होता है एक, तो आप मान के चलो कि 18 से 20 मार्क्स के आसपास साइंस का पोर्शन है। एनसीईआरटी इज द ओनली रेफरेंस बुक फॉर दैट, जो बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली 9th-10th की, जिससे क्वेश्चंस आते भी हैं, राइट। तो आपने अगर नहीं पढ़ा, आपको लगता है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा वर्डिंग साइड टफ है, सो आई हैव सिंप्लीफाइड ऑल द थ्योरेटिकल पॉइंट्स। एनसीईआरटी के क्लास 9th-10th में जो भी साइंस के चैप्टर है, राइट, इंक्लूडिंग उन 9th-10th के अलावा 8th के भी कुछ पोर्शंस हैं जिसको हमने डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समरी कर दिया है। समरी इन द सेंस आप उसको पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, मोर और लेस बात एक ही है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है, शायद अब गलती, ह्यूमन मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है, मान लो हमने सोचा ये नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछ दे यूपीएससी, बट वी ट्राई टू टेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी इन दिस पेज। तो ये डिटेल नोट्स है, जैसे कि आप उठाओगे, पढ़ोगे, चलो द सेल, सो लेट अस डिस्कस, इस टाइप के नोट्स है जो आप बुक्स पढ़ते हो ना, बेसिक्स, उसी टाइप के सारे चैप्टर वाइज हैं। उन सारे चैप्टर्स को हमने क्लब करके एक नोट्स बना दिया है, राइट। सो दिस इज डिटेल थ्योरी। जैसे आप पहले बुकलेट के बारे में बात करोगे तो ये एमसीक्यू है, एक्सप्लेनेशन में थ्योरी है, यहाँ पे डिटेल थ्योरी है चैप्टर वाइज। ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज कुछ ह्यूमैनिटीज आर्ट सेक्टर के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स से बच्चा कहना गलत नहीं है, इट्स एस्पिरेंट्स, राइट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको साइंस में शायद एनसीईआरटी से तकलीफ हो, या फिर कुछ पॉइंट्स हमने एनआईओएस ओपन स्कूल के बुक से लिए हैं, कुछ पॉइंट्स हमने अदर जो आईसीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए, एंड वी ट्राई टू मेक द इंटैक्ट। एक बुक हमने तैयार की है, दैट इज फॉर साइंस। साइंस मतलब व्हेन आई से साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज ए होल, इंक्लूडिंग सम पोर्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी 8, 9, 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 9, 10th का तो ऑलमोस्ट सब कुछ है, 8th का कुछ पोर्शन हमने इंक्लूड कर रखा है फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशंस, राइट। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड दिस इज बेसिक टू यूपीएससी लेवल। बेसिक से लेके, मतलब अगर आप कुछ नहीं आता, आपको लगता है कि ना मैं 7th स्टैंडर्ड पे हूं, तो भी आपको ये समझ में आएगा साइंस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, राइट। विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, देयर आर सम एमसीक्यूज जिसके आंसर्स गिवन है, आप उसको करेंगे, टॉपिक से आप देख भी सकते हैं, उसको ढूंढ करके आप आंसर की भी गिवन ही है। हेल्पफुल फॉर एनी स्टैंडर्ड एग्जाम। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी सेड दिस इज एक्सक्लूसिव बुकलेट, वेदर यू आर एस्पिरेंट ऑफ सीडीएस और सीएपीएफ, दोनों में से कोई सा भी, या फिर पीसीएस एग्जाम, आप किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, एनसीईआरटी 9, 10 तो वहां भी पढ़ना है ना, तो इस बुक के बाद आपको और कोई, चाहे आप ल्यूसेंट लो, अरिहंत लो, उन सबसे बेटर है, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। सो दिस इज बेटर देन, इट्स बेटर देन एनी साइंस बुक, चाहे आप ल्यूसेंट ले लो, चाहे आप अरिहंत ले लो, और बाकी XYZ जो भी होगा, आई डोंट नो, राइट, उन सब से बहुत बेहतर है। आप लाइफ में ग्रेजुएशन पे कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें साइंस का कुछ भी आना हो, चाहे वो सीडीएस, सीएपीएफ, या मैंने पीसीएस बोल दिया, अब इसके अलावा मैं अब ये तो नहीं कहूंगा ग्रुप डी का आप करो, ये सब बेकार की चीजें, उसमें आपको चाहे ये एग्जाम में काम आ जाएगी, तो दिस इज वैलिड। जैसे कुछ बच्चे मान लो कि आप जैसे यूपी से, तो यूपी पीसीएस, यू कैन डू दिस, इट्स मोर देन सफिशिएंट, आपको ल्यूसेंट व्यूसेंट देखने की जरूरत नहीं है, इसने कुछ पॉइंट छोड़ भी रखा होगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं छूटा है, दिस इज टू गुड। ये पर्सनली हम अपने रेफरेंस के लिए भी यूज कर रहे हैं, राइट। इट इंक्लूड्स रिवीजन साइंस क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, तो इसमें मान लो लास्ट में करीब 170 के आसपास एमसीक्यूज हैं, दैट इज यूपीएससी कलेक्टेड वंस, जिसके आंसर हैं आपको बस वो रात लास्ट में देख लेना है। अगर आप ये तैयार है तो एमसीक्यू देख लें, अदरवाइज बेसिक पढ़ने में आपको, मुझे लगता है कि ये पूरा करने में 4 से 5 दिन लगेगा। अगर आप 2-3 घंटे भी डेली पढ़ते हो एवरेज कैंडिडेट, तो भी शायद आप कर लोगे, 1-2 रिकैप आप मार सकते हो, राइट। सो ये बुक मैं आपको जरूर रेफर करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी किताब है, मुझे पर्सनली लगता है। नाउ ये जो पहली किताब थी जो क्यूआईपी वाली, अब जैसे आपको पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती, लेट्स सपोज इफ यू डोंट नो पॉलिटी इवन ए लिटिल बिट, देन इट माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। So this book is only for those candidates who at least know iota.
You should be aware कि there was there is something called 1857 revolt. आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम की कोई चीज थी, गांधी इरविन पैक्ट नाम की कोई चीज थी, जैनिज्म बुद्धिज्म कुछ तो था, राइट? अगर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा तो शायद ये आपके हेल्पफुल नहीं है। आपको अगर यही नहीं पता कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, then this book is not helpful for you. So ये किताब आप तभी लें जब आपने प्रिपेयर किया है एंड यू हैव एटलीस्ट आयोटा ऑफ इंफॉर्मेशन, आप थोड़ा बहुत रेडी हैं, और दिस इज फॉर एनरिचमेंट, आपके स्कोर को इनरिच करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को इनरिच करने के लिए, राइट? आपकी वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं, पावर बूस्टर्स जिसको कहते हैं, वो है। बट दिस इज फॉर एनी वन हु इज एस्पिरेंट ऑफ सीडीएस, सीएपीएफ और पीसीएस। आपको साइंस कुछ भी नहीं आता तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज डिटेल्ड थ्योरी, राइट? So this is all about the part 1 of the static books. Second part of the video I will discuss the current affairs booklets, right? ताकि आपको नीचे कमेंट में बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। I hope, right, आप इसके बारे में अगर जानकारी, मतलब in the sense if you want to inquire about that, what you, of course the hard copy is only available, only hard copy. So I write it here, the hard copy only. Reason, you know that if we provide the soft copy, today we have Telegram, WhatsApp University, 1 घंटा लगेगा और सारी जगह चला जाएगा, फिर हमारी मेहनत का क्या, राइट? सो इनफैक्ट जब पहली बार हमने सॉफ्ट कॉपी दिया था तो मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग उसमें से कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इट्स एक्चुअली हमारे, वी आर स्मॉल यूनिट, आई डोंट वांट माय एफर्ट टू बी वेस्टेड अपॉन. सो आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. बाय.